अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो रियोलॉजी का चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हम लोग इसका एक नेक्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पार्ट नंबर 3 है इस चैप्टर का, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसकी मैंने स्लाइड्स भी तैयार की हुई हैं और मार्टिन की बुक से इसकी पूरी जो डिटेल है वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दी है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो चलें लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये देखना है कि हम लोग यहाँ पर विस्कोमीटर की टाइप्स को क्यों डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर डिटरमाइन क्या करना है, रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़, जो कि एक प्रॉपर्टी है विस्कोसिटी। एक्चुअली हम विस्कोमीटर क्यों यूज़ करते हैं? विस्कोमीटर इज़ नथिंग, इट इज़ an instrument that is used to determine the viscosity. So in order to determine that viscosity, that rheological property, we use following types of viscometer. Actually we are using main 3 types of these viscometer. First is the capillary viscometer, then falling and rising body apparatus, and then the rotational viscometer. Okay, as its name indicate, capillary viscometer mean it has some type of capillary in it. Falling and rise body apparatus mean it has a ball which fall and rise, and by measuring its time we can determine its viscosity. And rotational viscosity, as its name indicate, we rotate the substance between the two stationary objects and then we find out its viscosity. So the ultimate goal of all of us is to determine the viscosity of our desired substance. So in order to design and in order to measure the viscosity, we use following main types of these viscometer. Now we describe all of these types of viscometer, and its subtypes will also be discussed in that lecture. So you have to be careful and focus on it. Now we move on. Instrumentation. What is viscometer and its types will be discussed here. First of all, viscometer is a device that is used to measure the viscosity of liquids. That is an important point. Why we are measuring the viscosity of liquids? Because in rheology we are studying about the flow of liquids. So when a liquid flow, it faces a resistance in its flow. So this resistance is called as viscosity of that liquid. So in order to determine the flow property of liquid, we have to determine the viscosity of liquid. So in order to determine the viscosity of liquid, we are using an instrument which is called as viscometer. Now we discuss the 2 types of viscometer which are classified here. First is the single and one point, and the second is the multi-point. What is mean by them? First of all is at a single rate of shear, one point is on the curve. What is mean by it? That the viscosity determined at the single rate of shear. Okay, and in that side the viscosity determined at the several rate of shear. Mean you have to take in single and one point, you have to determine the rate of shear at only one point, and then you determine its viscosity and then you give your final answer. But in multi-viscometer, you have to take several rate of shear values and then you have to determine its viscosity. Okay. Now, what are the equipments? First of all, in that side you have written Oswald viscometer and the falling sphere viscometer. And here we use cup and bob viscometer and cone and plate viscometer. These are the types of the viscometer. Okay. Now application that this kind of viscometer is applicable for only Newtonian fluids. Newtonian fluids are the fluids that are following our Newton law. Okay, and in the past lecture I have described what is Newton liquid and non-Newtonian liquid. All of the description will be given here, so you have to visit that lecture. Okay, now in that side you have you can use both type of liquids, non-Newtonian fluid as well as Newtonian fluids. Okay,
So it's mean cup and bob and cone and plate viscometer used to determine the viscosity of both non-Newtonian and the Newtonian liquids. Okay, now we move on to the next page. Now we are discussing our capillary viscometer, which is the first type. And as its name indicates, the viscometer that contain a capillary in its structure. Okay, it has a capillary in its structure. This diagram represents that it has capillary in it. Most common example of capillary viscometer is the Oxford viscometer. Okay, so the Oxford viscometer is considered under the capillary viscometer. In the introduction, you will write that these viscometer are only suitable for the Newtonian fluids, not suitable for the non-Newtonian system. And after you have to write the principle. The principle of capillary viscometer is Peculiar law. Peculiar law is the method of measurement. Time taken for the defined quantity to flow through a capillary with known its diameter and the length, and then compare with the time required to the flow of liquid of unknown viscosity. What is in this paragraph they are explaining to you that it is measuring the time in this method. हालांकि हम लोग इस मेथड में हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं, हम लोग विस्कोसिटी मेजर कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमने इसमें टाइम मेजर करना है फॉर द डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ फ्लूइड टू फ्लो थ्रू अ कैपिलरी. एक डिफाइंड क्वांटिटी लेनी है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक डिफाइंड क्वांटिटी फ्लूइड की है, ये इतना फ्लूइड है हमारे पास और इसकी हमने विस्कोसिटी मेजर करनी है. सो हम जब ये कैपिलरी विस्कोमीटर कुछ इस शेप का होता है और इसके अंदर यहाँ पर और यहाँ पर एक कैपिलरी अटैच की गई होती है. सो जब हम लोग इसके अंदर फ्लूइड को पास करवाएंगे, सो हमें इसका डायमीटर भी पता होना चाहिए, इसकी लेंथ भी पता होनी चाहिए और हमने टाइम देखना है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कैपिलरी इसके अंदर फिट की गई है. और जब ये फ्लूइड हम इसके अंदर इस ट्यूब के अंदर डालेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस फ्लूइड को फ्लो करने में कितना टाइम लगा है. देखिए, अगर विस्कस फ्लूइड होगा तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा एक जगह से फ्लो करने में, और अगर हम लोग कोई एक नॉन विस्कस फ्लूइड ले लेते हैं तो उसको पास करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. सो इसी वजह से इस तरह से हम लोग मेजर कर लेते हैं कि कौन सा फ्लूइड विस्कस है या नहीं है और कितनी उसकी विस्कोसिटी होगी. सो ये वाला पैराग्राफ आपने कट ऑफ नहीं करना है, ये इम्पोर्टेंट है. और कौन सा लॉ इसको मेजर करने के लिए यूज़ हो रहा है, इसको आपने याद रखना है कि कौन सा जो लॉ है वो इसके लिए यूज़ हो रहा है. जस्ट हमने टाइम को मेजर करके हम उसकी क्या मेजर कर रहे हैं, उसका विस्कोसिटी को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है, अब हम आगे इसकी डायग्राम भी देखेंगे और सारा इसका प्रोसीजर भी देखेंगे कि आपने किस तरह इसको परफॉर्म भी करना है. ठीक है, सो ये आपका प्रैक्टिकल में भी आता होता है. सो आप लोगों ने इसको अपने प्रैक्टिकल के लिहाज से भी रेडी रखना है. नाउ द फार्मूला एंड द डेरिवेशंस क्या है कि हमने जाहिर बात है कि जो भी वैल्यूज़ हम लोग फाइंड आउट करेंगे उस प्रैक्टिकल में, सो कुछ ना कुछ हमारे पास फार्मूला होना चाहिए जिसमें पुट करके हम वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड आउट कर सकें. वैसे ये तो प्रोसीजर के बाद आप ये फार्मूला जो है ये लिखेंगे. ठीक है, अब सबसे पहले eta1 and eta2 these are the viscosity of unknown and standard liquid. कोई भी आपको unknown और standard liquid दे दिया जाएगा और आपने उसकी viscosity फाइंड आउट करनी है, जिनकी क्या होगा n1 और n2 होंगी. while the rho 1 and rho 2 these are the densities, ये आपको पहले भी पता है. and t1 and t2 are the time required to the flow in second. तो फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, फार्मूला हमारे पास क्या बन गया, मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ. n1 eta1 और eta2 इज इक्वल टू रो 1 t1 और रो 2 t2. ठीक है, यानी वो पहला सब्सटेंस जिसकी विस्कोसिटी ये है, उसकी डेंसिटी ये है और उसको इतना टाइम लगा फ्लो करने में. दूसरा सब्सटेंस जिसकी विस्कोसिटी ये है, उसकी डेंसिटी ये है और उसका टाइम फ्लो इतना लगा. इस फॉर्मूले से हम किसी भी सब्सटेंस की विस्कोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो इसकी हो चाहे वो किसी हो. ठीक है, n1 और n2 रिलेटिव विस्कोसिटीज़ हैं.
अब ये जो अबव इक्वेशन है ये किस पे बेस करी है, पर्शियस लॉ के ऊपर बेस करी है, ठीक है। सो ये पर्शियस लॉ से ही हमने ये डेरिवेशन निकाली है ताकि हम लोग क्या कर सकें, फाइंड आउट कर सकें हमारी विस्कोसिटीज़ को। अब किस तरह से हमने इसको डिराइव किया, एक्चुअली हमने इस फार्मूले से इसको डिराइव किया। ये ही फार्मूला आगे जाके हमारा ये वाला फार्मूला बन जाता है, यानी इस वाले फार्मूले को हमने इधर कन्वर्ट किया है ताकि हम लोग फाइंड आउट कर सकें कि क्या है विस्कोसिटीज़। अब हम आगे डेरिवेशन देखते हैं कि किस तरह हमने इस फार्मूले को इस फार्मूले में कन्वर्ट किया। सो अगर आप इस फार्मूले को देखें तो ये क्या है, ईटा इज इक्वल टू पाई R4 T डेल्टा P 8 LV, ठीक है। अब R इसमें क्या है, ये R4 जो है ये हमारा रेडियस हो गया इनसाइड, कैपिलरी के इनसाइड जो उसका रेडियस होता है। फिर T जो है वो हमारा टाइम फ्लो हो जाता है। डेल्टा P प्रेशर है अंडर विच द लिक्विड फ्लो, प्रेशर भी तो होता है ना। और उसके बाद 8 आपको पता है, L जो है वो लेंथ है हमारी कैपिलरी की, V वॉल्यूम होगा फ्लूइड का जो फ्लो कर रहा होगा। और फिर हम लोगों ने आगे अब इसको डिराइव करना है। अब एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे कि इस पूरी इक्वेशन में जो पाई है, पाई लेंथ है, रेडियस है और वॉल्यूम है, ये है कांस्टेंट और इसको हम लोग के इक्वल टू कर देते हैं। अब हम करेंगे, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर ये कांस्टेंट क्यों है। एक्चुअली ये कांस्टेंट इस वजह से है क्योंकि देखें हम चाहे जो भी विस्कस प्लांट्स हम यूज़ कर लें, पाई की वैल्यू सेम रहेगी 3.14। हमारी लेंथ जो है कैपिलरी विस्कोमीटर की वो सेम रहेगी, लेंथ तो चेंज कभी नहीं होती ना। जो वॉल्यूम है वो भी उसका सेम रहेगा, वॉल्यूम भी कभी चेंज नहीं होगा। और जो रेडियस है कैपिलरी का वो भी चेंज नहीं होता है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो कांस्टेंट रहती हैं, सेम रहती हैं। इस वजह से हम इस पूरे कांस्टेंट को हटा के का जो कांस्टेंट है वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अगर हम इन सारी चीज़ों को हटा के अगर के का कांस्टेंट लगाएं तो इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी, के हम लगा देंगे इन सब चीज़ों की जगह और टी डेल्टा पी आ जाएगा। अब P क्या है, P हमारा जो प्रेशर है, हम आपने पढ़ा हुआ कि प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर। क्योंकि प्रेशर डिपेंड कर रहा है डेंसिटी के ऊपर तो हम यहाँ पर प्रेशर की जगह डेंसिटी लिख देंगे, ρ1 लिख देंगे। सो n ईटा 1 इज इक्वल टू K1 T1 P1 और ईटा 2 इसके वैल्यू के बराबर हो जाएगी। जब हम इन दोनों पर डिवीजन करेंगे तो ये K1 K2 ऊपर आ जाएगा। इन दो को अगर हम लोग कैंसिल आउट करें क्योंकि कांस्टेंट है तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ गई जो कि यही इक्वेशन है। तो इस तरह हमने इस इक्वेशन को डिराइव कर लिया है और इसी फॉर्मूले को यूज़ करके हम किसी भी सब्सटेंस की विस्कोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे लिए अब आसान हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पेज पे चलते हैं। हाँ जी, अब ये आ जाता है ओसवर्ड विस्कोमीटर। ओसवर्ड विस्कोमीटर और कैपिलरी विस्कोमीटर बिल्कुल सेम ही है और ये अब आप डायग्राम देख सकते हैं। दिस इज द कैपिलरी और ओसवर्ड विस्कोमीटर, ठीक है। मैं आपको बताया था ये एक यू शेप ट्यूब है, ठीक है। ओसवर्ड विस्कोमीटर इज अ यू शेप विस्कोमीटर एंड डिवाइस इट इज यूज्ड टू मेजर द विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड विद द नॉन डेंसिटी। और लिक्विड्स कौन से होंगे, हमेशा न्यूट्रिएंट फ्लूइड्स होंगे, नॉन न्यूट्रिएंट फ्लो को ये मेजर नहीं करेगा। एंड द डिवाइस इज नेम आफ्टर द विलियम ओसवर्ड, ठीक है। क्योंकि ये ओसवर्ड विस्कोमीटर है इसलिए इसकी डिस्कवरी यहाँ किसने की, विलियम ओसवर्ड ने। अपरेटस में इसका क्या है, कंसिस्ट ऑफ 2 बल्ब, सेक्शन बल्ब एंड द आर्म बल्ब। इसमें ना 2 बल्ब है, ये वाले जो सब्सटेंस है ये बल्ब हम लोग कहते हैं इसे। बल्ब 2 हैं, एक बल्ब ए है एक बल्ब बी है। एक इसकी 2 ट्यूब्स हैं, यू शेप है ना तो आप देख सकते हैं 2 ट्यूब हैं। एक ट्यूब को हम कहते हैं सक्शन ट्यूब, ये वाली सक्शन ट्यूब होती है। और एक को हम आर्म 1 कह रहे हैं, ये वाली जो ट्यूब है इसको हम आर्म 1 कह रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको देख लें कि हमने इसमें लेबलिंग भी कर दी है कि ये 1 है, ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 लेबल किया हुआ है, यहाँ पर 4 लेबल किया हुआ है। इसी तरह ABC में यहाँ हमने इस मार्क को, ये जो एक मार्क मैंने लगाया हुआ है, ये मार्क आपको जब आप रियल लाइफ में भी विस्कोमीटर को देखेंगे तो ये मार्क वहाँ पर भी लगा हुआ होता है। इसी तरह ये B मार्क भी वहाँ पर ऐसे लगा हुआ होगा और C मार्क भी यहाँ पर ऐसे लगा हुआ होगा। ये कैपिलरी ट्यूब एक अंदर इंसर्ट की जाती है, ये भी बनी हुई होगी वहाँ पर जब आप उसको देखेंगे, ठीक है। सो आर्म 1 से ये वाला जो ट्यूब है, आर्म 1 से कोई भी फ्लूइड है, ये हमारे पास कोई भी फ्लूइड आ गया एक बर्तन के अंदर, ये हमारा फ्लूइड है,
इसकी हमने विस्कोसिटी फाइंड आउट करनी है। सो हम इसको यहाँ से उठाएंगे और इसके यहाँ पर एंटर कर देंगे। सो ये फ्लूइड यहाँ से पास होता हुआ ये नीचे आएगा इस बल्ब ए में पूरा फुल होगा और यहाँ पर जाएगा। अब क्योंकि ये कैपिलरी का ये वाला जगह है ना, ये फुल है, ये दीवार है एक किस्म की, आप ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ फ्लूइड को गुजरने का सिर्फ ये रास्ता मिलेगा, सिर्फ ये रास्ता, ठीक है। सो अब यहाँ पर लिक्विड से पास करना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो यहाँ पर जब आपका जो फ्लूइड भर जाएगा ये यहाँ तक, सॉरी बस यही कैपिलरी ये बी मार तक हमने इसको ये फ्लूइड को भर देना है। यहाँ तक फ्लूइड आ गया और उसके बाद हम लोग फ्लूइड और ज़्यादा जो है वो लिक्विड को नहीं डालेंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये वाली ट्यूब जो है आर्म 2, इसको हमने सेक्शन ट्यूब कहा है। इसको क्यों कहा है, क्योंकि अब हम लोगों ने यहाँ से सक करना है। यहाँ से जब हम सक करेंगे तो ये वाला जो फ्लूइड है ये कैपिलरी से मूव करेगा, ऊपर आता जाएगा, आएगा और ए पॉइंट तक आ जाएगा। जैसे ही ये ए पॉइंट पे आएगा हम सक करना छोड़ देंगे और इसकी इस वाली ट्यूब के ऊपर ऐसे हम अपना थंब रख देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर अपना थंब रखेंगे तो क्या होगा कि जो हमारा फ्लूइड है वो यहीं तक ए मार्क तक ही रुक जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने, क्योंकि साथ ही आप लोगों ने अपनी जो स्टॉप वॉच है वो ओपन कर लेनी है। जैसे ही आप स्टॉप वॉच शुरू करेंगे उसके साथ ही आपने यहाँ का जो वो है स्टॉप वॉच उसको स्टार्ट कर देना है और उसके बाद आप लोगों ने मेजर करना है। स्टॉप वॉच की स्टार्ट करते ही और आपने अपना जब थंब रिप्लेस कर देना है। अच्छा जी, जैसे ही आप लोगों ने यहाँ से थंब को रिप्लेस किया और उसके बाद स्टॉप वॉच आपने ऑन कर दी, तो क्या होगा कि ये यहाँ ए पॉइंट से जो फ्लूइड है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू होगा, नीचे आता जाएगा और बी पॉइंट तक आ जाएगा। और जैसे ही वो बी पॉइंट पर पहुँचे आपने फ़ौरन स्टॉप वॉच ऑफ कर देनी है। तो स्टॉप वॉच में आपके पास सेकेंड में टाइम आ जाएगा कि उस लिक्विड ने कितना टाइम लिया ए से बी पॉइंट तक आने में, और उस टाइम को आप लोगों ने नोट कर लेना है। और फिर आपने उस टाइम को फार्मूले में पुट कर देना है और उससे आप लोगों को जो इस लिक्विड की विस्कोसिटी थी वो आपको फाइंड आउट हो जाएगी।